Kolkata horror story that we've been consistently tracking the developments of. Now, let's take a look at what's happening. There's quite a lot that's developing in the city of Kolkata right now in terms of the probe that's taking place. Let's just cut across to our colleague to even understand this. But before that, let's just bring you the latest updates in the female doctor murder and rape case. West Bengal police on Wednesday brought the accused Sanjoy Roy to CBI office at CGO complex in Kolkata and handed over the accused to the investigating agency. Central Bureau of Investigation has taken over the rape and murder case of female doctor at Kolkata's RG Kaur Hospital. Earlier in the day, a team of CBI officers from Delhi with medical and forensic experts had reached Kolkata and are rescheduled to visit the crime scene, in fact, today. Now, here are some of the visuals we exclusively are bringing to you of the 9th seminar hall of RG Kaur Hospital. This is, ladies and gentlemen, the crime site that we bring to you from RG Kaur Hospital. This is where the dead body had, in fact, been found on the fateful morning of 9th of August at 11:30 a.m. These are shots that we'll bring to you closely. We at News 9 have been able to access these visuals of that crime site. CBI team will in fact be inspecting the spot and recreating the entire crime scene here. Incident which shook the collective conscience of an entire nation and brought bitter memories of the 2012 Delhi Nirbhaya case has also become a thorn for the Mamata Banerjee government, who's at the pinnacle of her power with 3 consecutive terms as the chief minister in West Bengal. Kolkata, now a city which was once known for being one of the safest haven for females, has been tarnished with this gruesome, brutal incident. On Tuesday, the Calcutta High Court had directed the CBI to probe the case. Court also directed the West Bengal police to submit papers related to the case to CBI, but by 10 a.m. on Wednesday. At this given point, we are also awaiting these reports to be submitted. While hearing the pleas, High Court also questioned the delay in recording the statement of the former principal of RG Kaur Hospital and asked what the state government is doing to address the concerns of protesting doctors. Meanwhile, the Federation of Resident Doctors Association, or the FORDA, called off the nationwide strike on Tuesday following a meeting with Union Health Minister JP Nadda. Many other organizations, including the Resident Doctors Association of the Premier, All India Institute of Medical Sciences in Delhi, have, however, said that the strike shall continue. BMC MIRD has, in fact, decided that the ongoing strike will continue until all the demands put forth by the association are fully met and provided in writing. Federation of All India Medical Association, or FIMA Doctors Association, will be on strike even today, citing that only one of their demands of handing over the case to the CBI has so far been met. हमें अभी खबरें मिल रही हैं कि कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बॉडी ने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। मैं आप सभी लोगों को निश्चिंत करना चाहता हूं कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अभी इमरजेंसी मीटिंग करी थी, जिसमें 55 से 60 के करीब मेडिकल कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स पैन इंडिया, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, हर जगह से लोग आए थे और उन सबों ने यही सहमति दी है कि हम इस स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। फाइमा का जो स्ट्राइक का कॉल है वो कल कंटिन्यू रहेगा। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी किया गया है, जो सीबीआई को केस देने का मामला आया था, यह मामला हाईकोर्ट के निर्णय की वजह से आया था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। इसके अलावा अभी भी टैंपरिंग ऑफ एविडेंस और जिस सेमिनार रूम में बच्ची की हत्या हुई थी, वहां पर दोबारा से पेंटिंग करने की और रेनोवेशन के नाम पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें सरकार कुछ न कुछ छुपाना चाहती है। इसके अलावा केंद्र सरकार से हमने इस बार दरख्वास्त किया है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स में कुछ मजबूत नियम लाएं, कुछ मजबूती से उसको आगे बढ़ाएं और हमारे को कुछ कॉन्क्रीट दें, क्योंकि हम इस बारी अटल हैं, अडिग हैं कि हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स लाके रहेंगे। यदि इस एक्ट के प्रति सरकार को कुछ कदम उठाने हैं तो इससे उचित समय उनके पास नहीं है। उन्हें कुछ न कुछ कदम, ठोस कदम सरकार को, केंद्र सरकार को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए
उठाने पड़ेंगे। Well, with that, now let's cut across to our colleague who's joining us on the broadcast to understand the situation better on the ground right now. Ranjit Dhar joins us from Kolkata. Ranjit जी, आप हमें अभी ये बताएं कि क्या अपडेट आ रही है वहाँ से, क्योंकि पहले तो हमें वहाँ के विजुअल्स मिल चुके हैं, जो क्राइम साइट थी वो हम अपने व्यूअर्स को अभी कुछ देर में दिखाने वाले हैं, जो 9th सेमिनार हॉल है. इनफैक्ट दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज द विजुअल ऑफ द 9th सेमिनार हॉल. दिस इज वेयर इनफैक्ट द इंसिडेंट टुक प्लेस. दिस वेरी हॉल ऑन द फेटफुल नाइट ऑफ थर्सडे. बट रंजीत जी, आप हमें बताइए कि सीबीआई को जो अक्यूज वेस्ट बंगाल पुलिस के कस्टडी में थे उनका हैंडओवर सीबीआई ने ले लिया है. अभी सीबीआई का 10 बजे रिपोर्ट जाने का था. फर्स्ट जो रिपोर्ट है, इनिशियल जो रिपोर्ट, उसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, आप हमें बताइए प्लीज. देखिए, कुछ ही समय पहले अर्थात 10:30 पर संजय राय को हैंडओवर कर चुके हैं और सीबीआई हैंडओवर ले चुके हैं एक्यूज्ड को. एवं पहले से आपको बताया दिया गया था, जो हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार ये संजय को तदंतभार जो सीबीआई अर्थात केंद्रीय तदंतकारी संस्था सीबीआई ने हैंडओवर लिया था. ये हैंडओवर का तरफ जो अग्रसर हो रहा है और कुछ देर के बाद ये संजय राय को कलकत्ता सियालदा कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा एवं उसको खुद अपना हिफाजत में सीबीआई हिफाजत में लेके और जिज्ञासाबाद करना चाहते हैं सीबीआई तदंतकारी अधिकारी. आपको घटना का परंपरा आपको बताना चाहता हूं. कि सुबह सीबीआई का जो विशेष दल है वो आ चुके थे. उसका बाद उन लोग ने बीएसएफ जो कैंप है न्यू टाउन में, वहां गए थे. डीआईजी के नेतृत्व में एक छोटा बैठक हुआ. उसका बाद डीआईजी ने सॉल्ट लेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स सीबीआई दफ्तर में आए हैं. अभी बातचीत कर रहे हैं. बातचीत करने के बाद यही एक्यूज संजय राय अर्थात डॉक्टर को जूनियर डॉक्टर और रेप और खून के इंजाम पे गिरफ्तार हुआ ये संजय राय को. और कुछ ही देर के बाद सॉल्ट लेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स से सीबीआई दफ्तर से लेके जाएंगे सियालदा कोर्ट में एवं कोर्ट में उठा प्रोड्यूस करेंगे. प्रोड्यूस करने के बाद निजे हिफाजत में लेने का आवेदन भी करेंगे. ये सबसे अहम बात है जो ये घटना घटी है. इसका जो तदंतभार जो कलकत्ता पुलिस का होमिसाइड शाखा का लिया था, से होमिसाइड शाखा से सब हर सीडी हर तरह के जो तदंत हुआ है 2-3 दिन में, वो सब इंफॉर्मेशन अभी तक कलेक्ट कर चुके हैं. और सीबीआई टीम और कुछ देर पहले एक टीम चला जाएगा कोर्ट का तरफ और एक टीम जाएंगे आरजी खर अर्थात पीओ से जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो कलेक्ट करा जाएगा. उसका बाद धीरे धीरे ये तदंतो हाई कोर्ट का निर्देश अनुसार सामने लेके जाना चाहते हैं सीबीआई का विशेष तदंतकारी दल. जी रंजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए. मैं अपने व्यूअर्स को प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा बता दूं कि क्या क्या आज के आइटिनरी में है. इनफैक्ट जो प्रोटेस्ट चल रही हैं उसके दौरान women will take to the streets in at least 45 locations across Bengal at midnight on Wednesday in a protest over the gruesome incident. The call has been named Women Reclaim the Night. This is the particular poster that we'll also show you. That's in fact doing the rounds in West Bengal at this given point. And on the political front, Trinamool Congress MP Shukhendu Shekhar Ray will be joining the ongoing protest against the rape and murder of the 31-year-old trainee doctor in Kolkata on Wednesday. These are the latest details that we in fact bring to you about the protests that are going on and what all is happening in Kolkata. Ranjit ji, आप हमें बताएं कि ये जो protest plan किया गया है, ये रात हमारी है, जो ये protest का नाम भी दिया गया है, the night is ours. इसको ये राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक मूवमेंट बन चुकी है, एक आंदोलन बन चुकी है जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनकी. और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, सबको इनवाइट किया है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ इस मूवमेंट पे, बट कोई भी अपने राजनीतिक बैनर्स, जो पॉलिटिकल बैनर्स होते हैं, उसको लेके ना आए. तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हमने देखा हुआ है कि फाइमा का प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है अगेंस्ट द इंसिडेंट
उनकी डिमांड्स अभी भी पूरी नहीं हुई है। उनकी सिर्फ एक डिमांड पूरी हुई है कि सीबीआई टेक ओवर कर ले इस केस पे। उसके साथ साथ ये जो नया प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है कोलकाता में, इसके बारे में भी आप हमें थोड़ी जानकारी बताएं प्लीज। देखिए, स्वाधीनता के बाद से ऐसा प्रोटेस्ट अभी तक कलकत्ता पश्चिम बंगाल ने नहीं देखे। जो अभिनव प्रोटेस्ट है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के जांच के लिए, क्या है सुरक्षा, अर्थात रात को जब रात ढलती है तब महिला का सुरक्षा लेके एकाधिक प्रश्न चिन्ह होते हैं। इसीलिए देखिए, आरजीकर का जो डॉक्टर अटॉर्नी डॉक्टर का रेप करके जो खून मर्डर किया गया है, इसका विरुद्ध सारे महिलाओं, कोई पॉलिटिकल बैनर पोस्टर, कोई पॉलिटिकल कुछ नहीं रहेगा। आम पब्लिक आज रात ठीक 11:30 बजे से 12 बजे तक भारतीय का नेशनल एंथम दे के शुरू करेगा प्रोटेस्ट। अर्थात जो भारतीय नारी है, नारी का सुरक्षा किधर है, नारी का सुरक्षा कब मिलेगा, ये सब लेके प्रोटेस्ट सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, प्रोटेस्ट है वो तिलोत्तमा के लिए, जो डेनी डॉक्टर धर्षण होने का बाद खून हुआ है, इसी के लिए प्रोटेस्ट है। आज इस स्वाधीनता का पहली वाली रात में इतना बड़ा प्रोटेस्ट भारतवर्ष में पहली नारी द्वारा संगठित करते जा रहा है। जी बिल्कुल। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वी सी today's protest will be seen in Kolkata. In fact, it's a historic moment given the current circumstances in Kolkata. रंजीत जी, आप हमें ये भी बताएं कि अभी जांच के दौरान और क्या-क्या डिटेल्स हमें पता चल रही हैं, क्योंकि हम जब सीबीआई की जांच की बात करते हैं, उनके पास अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो कि दूसरी ऑटोप्सी रिपोर्ट कोई करने का पॉसिबिलिटी नहीं था क्योंकि बॉडी को बर्न कर दिया गया। जो क्राइम साइट है उसके आजू बाजू में हम देखने लगे कि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो गई। जिस दिन बॉडी मिली थी उसके सेकेंड डे ही शुरू हो गई। उसका परमिशन कहाँ से मिला, वो भी सवाल उठता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि कितने कल्प्रिट से क्या जानकारी पुलिस के पास थी और क्या जानकारी सीबीआई के पास अभी आई हुई है इस केस के बारे में। इन सब को लेकर हमारे पास और क्या जानकारी है कि सीबीआई के इस जांच में क्या मुश्किलें हैं जो उनको फेस करना पड़ेगा जांच के दौरान। देखिए, ये तो सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चैलेंज का सामने में सम्मुखीन होते जा रहे हैं। मगर सीबीआई का जो तदंत स्पेशल टीम है, मतलब चुन के दिल्ली से लिया गया ये एक विशेष सीबीआई का टीम। ये सीबीआई का टीम में जैसे फॉरेंसिक वाले हैं, इससे डीआईजी का नेतृत्व में ये सीबीआई टीम गठित कर दिया गया है और एक एफआईआर भी कर चुके हैं सीबीआई का तरफ से। वही एफआईआर का भित्ति में आज ये संजय राय को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और कलकत्ता पुलिस से मिला हुआ जो कुछ भी एविडेंस है, वो एविडेंस का तरफ और सीबीआई जो आज से तदंत शुरू करेंगे, वो एविडेंस मिला के कहाँ फाक रह गया, कहाँ ये रह गया, सब कुछ मिला के देखने के बाद सीबीआई का तदंतकारी दल ये सिद्धांत लेंगे कि आगे चल के क्या उन लोगों को क्या लेना है, क्या करना है, सब कुछ देख लेने वाले हैं। उसके बाद उन लोग अभी पहले विक्टिम का परिवार का साथ बात करेंगे। इसका बाद जो एक्यूज संजय राय है उसको पूछताछ करेंगे। उसको पूछताछ के दौरान मिलेंगे जो तथ्य है, वो तथ्य देके फिर तदंतों को आगे लेके जाना चाहते हैं सीबीआई का विशेष दल। जी रंजीत जी, थैंक यू हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। क्वाइट अ क्रूशियल इनफैक्ट डे इन कोलकाता टुडे with a lot happening. The CBI team having reached and having taken over the probe that's continuing, protests that still continue, and a unique student movement that begins in Kolkata today night on the eve of Independence Day that marks a rather crucial point in our democracy as well as to where exactly have we come. It takes us back to 2012, 12 years back to a case that we had in fact that had shaken the rest of the world as well as the nation, the Nirbhaya case. And this is justice for Abhaya that we are bringing to you, ladies and gentlemen.